جی جناب گلظفر خان صاحب نہیں ہے جی. جی جناب آفتاب احمد صدیقی صاحب. جی آفتاب صدیقی صاحب بعد میں ابھی دیتے ہیں جی ان کو. ابھی آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسپیکر صاحب میرا پورا نام آفتاب حسین صدیقی, تھوڑا کریکشن کر لیجیے. پورا نام آپ کا میں نے لیا آفتاب احمد صدیقی. جی یہاں پہ جو بجٹ کے حوالے سے اسپیچز ہوئی ہیں, سیاسی اسپیچز تو پورے سال کے ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. میں اپنی تقریر کو بجٹ کے حوالے تک ہی رکھوں گا. جبکہ دنیا کورونا کا شکار تھی اور ایک ایسے وقت میں یہ بجٹ آیا, اور اس بجٹ کو جو ٹیکس فری بجٹ ہے, جو عوام دوست بجٹ ہے, اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے پرائم منسٹر حفیظ شیخ حماد رضا صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ان حالات میں بھی انہوں نے ایک بہت زبردست بجٹ پیش کیا. 2018 19-20 میں جو صورتحال تھی, شروع کے 9 مہینے میں ہماری اقتصادی صورتحال بہت بہتر تھی. تمام معاشی انڈیکیٹرز جو ہے وہ پازیٹو ہو رہے تھے اور اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی. ہمیں ورثے میں جو صورتحال ملی پاکستان میں, جس وقت ہماری حکومت آئی, تو ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, اسی طرح فارن ریزرو دیکھ لیں, ہر چیز معاشی ابتری کا شکار تھی. اور ہم نے پچھلے 9 مہینے میں ان تمام چیزوں کو پازیٹو کیا, اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کم ہوا, فارن ریزرو بہتر ہوا. 9 مہینے کی جو ہماری ریونیو تھا وہ 17% کا اضافہ ہوا. جناب والا, 5 سالوں میں نون لیگ کی گورنمنٹ میں قرضہ 15,000 ارب سے 31,000 ارب تک چلا گیا. فارن ڈیٹ چچا اور تایا کی کوششوں سے 42 ارب ڈالر سے 95 ارب ڈالر تک چلا گیا. سرکولر ڈیٹ 13,000 ارب تک چلا گیا, 1,300 ارب تک. ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا گیا, اسٹیرائڈ کے اوپر رکھا گیا, پاکستان کی اکانومی کو خراب کیا گیا. پاکستان کے جو ریزرو تھے وہ اس حد تک گر گئے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز آ گئے. بجٹ خسارہ ان کے دور میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ تھا. جناب اسپیکر, ہماری حکومت نے آتے ہی اقتصادی صورتحال پہ توجہ دی اور اصلاحات پہ توجہ دی. حکومتی اخراجات کم کیے, ذرائع مبادلہ کے ذخائر کو بہتر کیا گیا, غریب کے لیے احساس پروگرام لائے, احساس کا فعالت پروگرام لائے, کامیاب جوان پروگرام لائے, جس سے انوائرمنٹ کریٹ ہوا, لوگوں کو انٹرپرینرشپ کے تحت روزگار آگے لے کے چلے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہم نے ادھار لینا بند کر دیا, جو پچھلے دوروں میں ہوتا آ رہا تھا. کاروباری طبقے کو ریفنڈ شروع کیا, جس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی. بیرونی سرمایہ کاری میں بے انتہا اضافہ ہوا. اور پھر مارچ میں کووڈ-19 آ گیا اور اس کے اثرات منفی پڑنے شروع ہو گئے ہماری معاشی صورتحال پہ. ہم نے اس کو, ہمارے پرائم منسٹر نے بڑی خوش اسلوبی سے مینیج کیا اور غریب عوام کے لیے احساس پروگرام کے تحت 1,20,00,000 افراد کو 12,000 کا کیش مہیا کیا گیا. اسی طرح کووڈ کو جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی, جو کورونا تھا, اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس کو بھی ہم نے دیکھنا تھا. خالی کورونا کو لے کے نہیں چل سکتے تھے. پرائم منسٹر نے بڑا زبردست پروگرام دیا کہ ایک سافٹ لاک ڈاؤن کا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, جس کا تماشا بنایا گیا سندھ گورنمنٹ نے. اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بھوک افلاس میں اس طرح تیزی نہیں آئی جس طرح یہ سمجھتے تھے. سندھ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کیا, جو سخت لاک ڈاؤن کیا, اس کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ کراچی کو پیرالائز کر دیا جائے. کراچی معاشی ہب ہے پاکستان کا, کراچی پیرالائز ہوتا ہے تو معاشی طور پہ ہمارے ریونیو کلیکٹ نہیں ہوتا. اور پھر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں فنڈز نہیں دیے. جناب والا,
NFC अवार्ड एक परसेंटेज है, जो बजट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, जो कलेक्शन होती है उसके हिसाब से वो परसेंटेजेस तमाम सूबों को दी जाती है। जब कलेक्शन ज्यादा होगा ज्यादा परसेंटेज दी जाएगी। इसी तरह कोरोना की वजह से कम हो रहा है तो उसी परसेंटेज पे जो 60% NFC अवार्ड है वो सूबों को दिया जाता है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि NFC के लिए तो बड़ी तगोदैर आप करते हैं, बड़ी स्पीचेस करते हैं, बड़े कानून की शिकल लेके आते हैं। क्या पिछले 10 सालों में आपने कोई तमाम सूबों ने PFC अवार्ड किया? आपने वफाक से सारी फैसिलिटीज ली 18वीं तरमीम के हिसाब से, आपने वो तमाम फैसिलिटीज बल्दियात के लेवल पे मुंतकिल नहीं की। जब आपने बल्दियात के लेवल पे मुंतकिल नहीं की तो कराची में बल्दियात का सत्यानाश हो गया। कराची के अवाम सिसक कर जी रहे हैं। 18 मार्च को लॉकडाउन के हिसाब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको हम सब ने कहा कि ठीक है लॉकडाउन के लिए जाते हैं, एक स्मार्ट एंड लॉजिकल लॉकडाउन होना चाहिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे दावा किया कि हम 20 से 25 लाख अफराद को राशन मुहैया करेंगे। वो 20 से 25 लाख अफराद वो गुमनाम राशन के तौर पे गायब हो गए, वो राशन गुमनाम हो गया। सिंध गवर्नमेंट ने कराची को और सिंध को कोई रिलीफ नहीं दिया, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने 150 अरब एहसास प्रोग्राम के तहत और इंडस्ट्री को, वो इंडस्ट्री जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला उसके लिए उन्होंने 80-90 अरब रुपए और टोटल 1243 अरब रुपए का पैकेज दिया। सिंध हुकूमत ने जो अभी बजट पेश किया है 1243 अरब का। जनाब स्पीकर, कराची के लिए कोई डेवलपमेंट के मद में कोई एक पैसा नहीं रखा गया। कराची के साथ मुतसबाना रवैया इख्तियार किया हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। आप कराची को देखें, कराची में पानी का मसला है, K4 का जिसके तहत 650 MGD पानी कराची को मिलना था, पिछले 12 साल में एक बूंद पानी का कराची को नहीं मिल पाया। इसी तरह कराची का जो सुअर वाटर है वो समंदर में गिर रहा है। कादिर पटेल साहब यहां मौजूद हैं, तिमाड़ी से ताल्लुक है इनका, इसके ऊपर मैं कहता हूं, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए हम मिलकर बात करते हैं कि कराची में सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगता। इनका हल्का भी बहुत ज्यादा मुतासिर है। कराची में जो बल्दियाती इख्तियारात थे, जनाब स्पीकर साहब, एक के बाद एक बल्दियाती इख्तियार सूबे सिंध लेती चली गई। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का इंतजाम संभाला, उससे क्या हुआ, कराची को पानी मिलना बंद हो गया। कराची में सीवेज के मसाइल बढ़ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, जब से इनके पास गई है बेतहाशा इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, इंक्रोचमेंट शुरू हो गई है। जनाब वाला, कराची पिछले साल आपने देखा होगा लेट्स क्लीन कराची के एक कैंपेन शुरू हुई थी और बारिशों से नालों की सफाइयां की थी जिससे कोई खातिर ख्वाह बेहतरी आई थी। कराची की में सफाइयों का इंतजाम जो बल्दियात के पास होता है, तमाम दुनिया में आप देख लें तो उसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया गया। कराची मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को सिंध मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट बना दिया। कराची का जो कलेक्शन है, सिंध का जो कलेक्शन है, उसका 90 से 95% कराची दे रहा है। कराची के लिए 10,000 बसों का वादा किया गया। पिछले 12 साल में एक बस भी सिंध गवर्नमेंट कराची के लिए नहीं ला सकी। 12,000 बसों का वादा करके, 10,000 बसों का वादा करके। जनाब आला, अस्पताल की बात हुई यहां पे कि वफाक जो है ना हम पे हमला कर रहा है, वफाक हमारे अस्पताल कब्जा करना चाह रहा है। 10 साल पहले 18वीं तरमीम से पहले ये हॉस्पिटल जो थे वफाक के पास थे। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है और वफाक इनसे हॉस्पिटल को लेके इससे कम बजट में हम इसको चला के दिखाएंगे और इंशाअल्लाह इसका म्यार शौकत खानम और आगा खान हॉस्पिटल जैसा होगा। यहां वो म्यार नहीं होगा जहां बच्चों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, जहां जख्मियों को गदा गाड़ियों पे एम्बुलेंस लेके जाया जा रहा है। सिंध में कोई रेस्क्यू डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं। आपने थड़ के हालात देख लिए, गंबट के हालात देख लिए, उमरकोट देख लिए, लाड़काना देख लिए, जहां सिसक सिसक के लोग मर रहे हैं।
रेवेन्यू जैसे कि मैंने आपको बताया 90 से 95% कराची कंट्रीब्यूट करता है। और कराची को आप क्या कहते हैं? आपने कराची को कुछ नहीं दिया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया आपने, कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, मोहनजोदारो बना दिया आपने कराची। ये कराची ऐसा कराची नहीं था। रोशनियों का शहर होता था और रोशनियों के शहर में अमन आतिशी से हम लोग रहते थे। मगर अब आप देखें जो कराची की सूरत हाल है, अबतर हो चुकी है, कराची सिसक रहा है। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त होगी कि जिस तरह NFC अवार्ड होता है इसी तरह PFC अवार्ड होना चाहिए। जिस तरह 18 अमेंडमेंट के बाद सारी सर्विसेज तमाम डिपार्टमेंट सूबों को चले गए हैं, उसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी, सजेशन होगी कि 18वीं तरमीम पे भी हम गौर करें। और ये सहीफा आखिर नहीं है, इसमें हमें गौर करना चाहिए। इसमें अगर कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं तो हमें उसमें लाने चाहिए। यहां बात हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, सिंध का 85% बजट नॉन डेवलपमेंट बजट है, एक्सपेंडिचर बजट है। डेवलपमेंट पे तो 12% खर्च होते हैं सिंध में। जनाब स्पीकर, मेरी आखिर में यह गुजारिश होगी कि कराची सिंध जहां पे हेल्थ और एजुकेशन की सूरत हाल बेइंतहा अबतर है, 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारियां सूबों की हैं। आप स्कूलों की हालत देखें तो वहां पे फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बिजली नहीं है, बिजली है तो वहां पे गैस नहीं है, टूटे हुए हालात हैं, गधे घोड़े भैंसे वहां पे बंधी हुई हैं। अभी शहबाज गिल साहब शायद नवाबशाह गए हॉस्पिटल देखने, और जब वो हॉस्पिटल की वीडियो आई सामने तो कहा गया ये हॉस्पिटल तो बंद हो गए। आप तो हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल चलाएंगे कैसे? आपके हॉस्पिटल्स की सूरत हाल देखें, कहीं आपके यहां एम्बुलेंस नहीं है, कहीं सर्विसेज नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्टाफ गायब है, घोस्ट लेबर है। गो के सिंध का सत्यानाश हो चुका है पिछले 12 साल में। 12 साल से इन्होंने ये बजट दिया है और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस बजट में जो 85% जो एक्सपेंडिचर है वो इनके गवर्नमेंट मुलाजमीन का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब वहीद आलम।